नाम क्या होगा भाई? ये मिसरू खान नाम है क्या? मिसरू खान। Good evening, everyone. Today it is Sunday, and on Sunday we do revision class. So that is why we are going to revise previous lessons. I'll ask you questions and you try to answer. If you find difficulty, then I will help you in understanding the concept. Well, so who will talk to me first? Unmute yourself. Manal Ahmed, unmute yourself so that I may ask you questions and you reply, and we may have a great revision. कौन लगा रहा है ना जी एक नंबर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. How are you? जी, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ अबाउट यू? I'm also fine, thank you. So today there is a revision class. So could you please, there's a background sound, so we find difficulty. यस, सॉरी। Okay. So could you please sit a place where there is no background sound? सर सॉरी, आज मेरे पास नहीं हो पाएगा, थोड़े गेस्ट आएंगे हैं हमको, आज किसी और को देख लीजिए। Okay, okay, sure, sure. So Jashim Khan, Yes, sir. well, I'm going to ask you a question and you'll try to answer. If you find difficulty, then no problem, I'll help you, right? All right. I'm going to speak English sentences and you translate into Hindi. Okay. Good. She makes me beat. Translate the sentence into Hindi. She makes me beat. वो मुझे मर वो मुझे मरवाती है। Well, वो मुझे पिटवाती है. Good. That's हाँ, correct answer. पिटवाती है। Okay, okay. Next. I made my car wash today. I made my car wash today. मैं आज कार धुलवाया। Absolutely. Fantastic. Correct answer. Get your hair cut. Get your hair cut. अ, बाल बाल कटवाना। Get your hair cut. तुम्हारा बाल कट अपना बाल सॉरी, अपना बाल कटवा लो. अपना बाल कटवाना। Okay. I have been beaten. I have been beaten. मुझे पीटा गया, मुझे पीटा गया। No. मुझे पीटा गया means in English I was beaten. हाँ, But I have spoken I have been beaten. मुझे मुझे पीटा गया।
Again you have spoken मुझे पीटा गया. मुझे पीटा गया means in English I was beaten. I was beaten means मुझे पीटा गया. But I have spoken I have been beaten. मैं पिटा रहा हूँ. I have been beaten means मुझे पीटा गया है. Something has been done recently. मुझे पीटा गया है. मुझे पिटा गया है. Not गया. Again you're saying गया. गया means past. I was beaten. Although I'm saying I ओ, have been beaten. मुझे पीटा गया है. मुझे पिटा गया है. Yes. There is difference between मुझे पीटा गया and मुझे पीटा गया है. पीटा गया सर हम means 2 हफ्ता बाद हम 2 हफ्ता मेरा क्लास छूट गया था क्योंकि अब no क्लास जो problem. है ना No चेंज problem. कर दिए थे ना इसीलिए. No और 2 हफ्ता problem बाद dear student. जब जागो तब सवेरा. आज से शुरू कर लीजिए ना, कोई मसला नहीं है. मैं आपका टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ, आपको नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना. जब इसीलिए आप भूल भी गए बहुत कुछ. ओके आप इफ आई आस्क क्वेश्चन यू मे आंसर एंड नॉट आल्सो. जब आपसे सवाल पूछा जाए तो जरूरी नहीं कि आप सही आंसर दें, आप गलत भी दे सकते हैं. आप गलत देंगे तो ये मैं आपको सही बताऊंगा, अगर सही देंगे तो अगला पूछूंगा. ओके. आई एम बीटेन. ट्रांसलेट इनटू हिंदी. आई एम बीटेन. मैं पिटा रहा हूँ. रॉन्ग. हाँ, मैं मुझे पीटा जाता है. गुड. गुड. दैट्स करेक्ट. नाइस आंसर. आई एम बीइंग बीटेन. मैं पिटा रहा हूँ. नो. आई एम बीइंग बीटेन. मत मीन्स मुझे पीटा जा रहा है. मुझे पीटा जा रहा है. ओके. ओके. आई हैव बीन बीटेन. हाँ, मुझे पीटा गया है. गुड जॉब. ग्रेट आंसर. ABC. ABC. Unmute yourself. May I Yes, ask you sir. a question? May I ask you a question? Okay, I'm ready. Yeah, because today there is a revision class, so we are going to have a revision. Okay, sir, no problem. First, I will ask you translation. Then I will speak English sentences and you will translate into Hindi. Okay, sir. I Well, will be try. you are appreciated. Sir, appreciated, not understand. Meaning, Appreciated means praise. Praised. Praised. Do you understand praise means? Praise. Praise means? no, sir. No. Okay. Praise and appreciate means say some good words about someone. For example, if I teach well, then you will speak some good sentences, some good words about me. That is called praise. Appreciate. Did you understand? No, sir. Okay. Now I'm going to speak Hindi so that you may understand. Appreciate means सराहना करना, तारीफ करना. Praise means तारीफ करना, सराहना करना. Okay, sir. Yes. Well, so I'm going to ask another question. Okay. She may be beaten. She may be beaten. मैं पीटते हुए देख रहा हूँ. How can you say may? Have I spoken I? No.
Excuse me. Yes, sir. She may be beaten. What does it mean? Okay, okay. Is there anybody who can answer who can translate into Hindi? उसे उसे पीटा जा सकता है। Good job. उसे पीटा जा सकता है। करेक्ट आंसर। जब भी कोई काम किया जा सकता है, पता नहीं कौन करेगा, तो कहते हैं मे बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। ही मे बी गिवन प्राइज। व्हाट डज इट मीन? ही मे बी गिवन प्राइज। मुझे इनाम दिया गया। He may be. How उसे can you इनाम say? दिया जा सकता है। उसे इनाम दिया जा सकता है। Well, कोई काम किया जा सकता है, लेकिन डाउट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। Okay. He must be given prize. What does it mean? He must be given prize. उसे इनाम लाजमी दिया जा सकता है। उसे जरूर इनाम दिया जा सकता है। Okay. He might be given prize. शायद उन्हें उसे उसे इनाम इनाम दिया दिया जा जा सकता सकता है। था। शायद Sorry. उन्हें इनाम दिया जा सकता था। Speak again. शायद उसे इनाम उसे दिया जा इनाम दिया सकता जा है। सकता था। No. शायद उसे इनाम दिया जा सकता है। Yes. उसे शायद ही इनाम दिया जाए या दिया जाएगा। उसे शायद ही। When you show weak possibility, there is less chance to happen that we use might. And when we show a strong possibility, there is high chance of happening that you will use must. And when we show equal possibility, 50 and 50, equal possibility, then you will use may, M-A-Y, may. May be plus verb in third form, might be plus verb in third form, must be plus verb in third form. Okay, next question. Next question goes to Motorola. May I ask? May I ask? Okay. Hassan. Abbas. यस सर। Okay. Could you please tell me the difference between two sentences? And I'm going to speak that sentence. The first sentence is, I am waiting for you. I am waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। First listen. कंटिन्यूस। Okay, first listen, two sentences. The first sentence is, I am waiting for you. The second sentence is, I have been waiting for you. फर्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इट इज ए कंटिन्यूस। अमीर मठा। इट इज ए कंटिन्यूस टेंस। I think something is happening. Okay. And the second one is a passive voice sentence. Active voice. I think active voice. Like maybe sorry, can you repeat sentence? I'm going to repeat all two sentences. The first sentence is, I am teaching. And the second sentence is, I have been teaching. Tell me the difference between both sentences. First sentence is sorry, you are teaching continuous.
to anybody. First sentence is present continuous tense. Second sentence is present perfect continuous tense. First sentence is work is going. Second sentence is work is before going past time से going है, चल रहा है काम जैसे पहले से चल रहा है. Present But sir, perfect second, continuous tense. according to this brother, sir, but in second sentence, this is not showing time, like time. Not showing time, but the present day. perfect continuous tense have been. This is showing that Second sentence is from passive voice, passive sentence, passive. First is If the present perfect, present continuous tense, and second passive from passive. So there is things are, I think when second sentence is showing time like a day, years, month, then we can say present perfect continuous tense. But here not showing day, date and time. Okay. Okay. I'm going to tell you, not to worry. Very first, I will tell you that one man said that I have been. This sentence belong to passive voice structure. This is absolutely wrong. Why? Why it is wrong? If I talk about passive voice structure, so my verb should be in third form. And as I told you, I have been teaching. I have been something. I forgot what was the sentence. I spoke ing form. I have been plus I spoke. I have been plus ing form. And in passive voice, ing form is never used as a verb. So how can anyone say that this Yes, sentence belong to passive voice? So it is wrong to yes, say. sir, you are saying right. It is wrong to say. sir, I am right or wrong? Okay, I'm speaking one by one. So it is wrong to say that this sentence belong to passive voice. Why? Because in passive voice you can't speak first form, you can't speak second form, you can't speak ing form. You can only speak third form. And if I am speaking, I'm not speaking third form, but I'm speaking ing form, ing first form, form. Yeah, first form, second form, fourth form, fifth form, fourth form. but not third form. That can't be passive voice. Okay. The second man said that Present continuous tense. I have been speaking English like that. And in this sentence, there's time is not mentioned. Time is not mentioned. That is why this sentence can't be present perfect continuous tense. This is a wrong idea. Sometimes we mention time, sometimes we don't. This Don't mention. this Yeah. doesn't matter. Okay. So have been plus ing form means the work is in continue for a long time. The work is in continuous mode for a long time. So this sentence belong to present continuous tense, present perfect continuous tense, Perfect continuous tense. where we Yeah. say that the work has been running or the work is in progress for a long time. Okay. And when I say she is weeping, she is dancing, she is teaching, so this is also continuous tense, but I'm telling that at the moment she is weeping, at the current situation he is weeping, etc. So for your better understanding, I would like to tell you something. If I speak two sentences, in both sentences I'm speaking ing form, but before ing form, sometimes I am using is, am, are, and sometimes I am using have been or has been. Both sentences belong to continuous tense, but first present continuous, the second one perfect continuous. And in first sentence I'm talking about current
On current time, this is happening. But if I say I have been plus ing form, then you should understand that this work is continue for a long time. And one thing you will be surprised to know when I will tell you, you may be surprised. Here is a sentence. मैं खुश हूँ. You will say I am happy. Okay. But if I say मैं सुबह से खुश हूँ. So if you say I am happy since morning, your sentence is wrong. I am happy. No, I am happy, but I have been happy. I have been happy since morning. Why have been? Because you are telling that you are in this situation for a long time. So when you talk about a continuous activity that something has been running for a long time, you will say have been, has been plus ing form. Many people ask me, sir, after have been we use ing form. So use ing in this word. Well, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये काम लंबे टाइम से जारी है, ये चीज लंबे टाइम से है, तो आई हैव बीन पर तो ing फॉर्म आता है, यहाँ पर ing फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं? सो आई वुड लाइक टू से दैट वी यूज ing फॉर्म इन वर्ब. हम लोग ing फॉर्म का इस्तेमाल वर्ब में करते हैं, क्रिया में करते हैं, कोई काम दिखाने वाला वर्ड जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना. ओके. और ये जो हैप्पी है, ये कोई वर्ब नहीं, कोई काम दिखाने वाला वर्ड नहीं है सब. ये इन सब से तो किसी की हालत पता चलता है कि वो इस हाल में है, उस हाल में है. तो जब ये वर्ब है ही नहीं, तब इसमें ing कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना. तो इसीलिए आप ये ना सोचिए कि हैव बीन बोल दिया तो यहाँ ing फॉर्म ही बोलना पड़ेगा. ing फॉर्म, सॉरी, इस पे आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन. हाँ, तो आप ये ना समझिए कि हैव बीन बोल दिए तो यहाँ पर ing फॉर्म ही आएगा. ing फॉर्म आ सकती है, अगर आप बता रहे कोई काम चल रहा था ing फॉर्म आ सकती है. ओके. लेकिन यहाँ पर कभी कभी एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, यानी किसी की हालत बताने वाले, सिचुएशन बताने वाले वर्ड भी आ जाते हैं. तो आप शुरू में बोले हैव बीन प्लस कोई एडजेक्टिव, मीन्स कोई काम लंबे टाइम से जारी है. जैसे सर ही हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग. ऑफ कोर्स ही हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से उदास है. Sir, what is the translation? I have been teaching. आई हैव बीन I टीचिंग. have been teaching. Good job. Good job. For your better understanding, I would like to tell you another example. Okay. I'm not going to use teaching, but I'm going to use waiting so that you may understand well. After that, I will tell you about teaching. So the example is, I have been waiting for you. I have been waiting for you. I have been means I am waiting you for a long time. This means in Hindi, मैं आपका इंतजार करता रहा हूँ. मैं आपका इंतजार करता रहा हूँ. Okay. So for 5 minutes, you feel you are not an Indian, means you don't know Hindi. You are an Englishman and you understand only English. Only for 5 minutes. So you will never think of Hindi.
If anybody said to you, I have been waiting for you, so you will understand that मैं आपका इंतजार करता रहा हूं. And if someone say that I am waiting for you, I am waiting for you, this means मैं आपका अभी इंतजार कर रहा हूं, यानी भी करंट सिचुएशन में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. So I have been plus ing form means कोई काम चल रहा है. Same way, someone asked me, I have been teaching. I have been teaching means मैं पढ़ाता रहा हूं, यानी ये काम लंबे टाइम से शुरू किया, अभी तक चल रहा है. But if I say I am teaching means I'm doing this work right now, मैं अभी इस काम को कर रहा हूं. This is the difference. Okay, sir, understood. Okay, I'm going to tell you one or two example. गीता तैयार है, गीता is ready. But if I say गीता 4 घंटे, गीता सुबह से तैयार है, गीता has been ready since morning. Gita has been. Why? Because I'm talking about she has been ready for a long time. Okay, same situation with past. If you say वे लोग नेता थे, they were leaders. But if you say वे लोग वर्षों से नेता थे, they had been leader for years. हम लोग किसान थे, we were farmers. हम लोग बचपन से किसान थे, we had been farmers. Okay. मैं तैयार था, I was ready. मैं तैयार था, I was ready. But if I say मैं तैयार नहीं था, then you will say I was not ready. I was not ready. But if I say मैं 4 बजे से तैयार था, I had been ready for 4 hours. I hope I think I spoke okay, I forget. I'm going to ask you another question. Nita गोरी थी, Nita was fair. Nita was fair. Nita गोरी थी, Nita was fair. Nita बचपन से गोरी थी, Nita has been fair. Nita बचपन से गोरी थी, Nita had been fair since childhood. So when you talk about time that this is happening for a long time, you will use had been plus verb, either adjective or anything else. Did you understand? May I need to explain in Hindi also? Did you understand? May I need to explain in Hindi also? Okay, good. Now I'm going to ask another question. This question goes to Mr. Habibullah. Are you ready? सर अभी अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ. No problem. Today there is a revision class. So I'm asking question to all and you may answer. If you know, if you don't know, I will help you. आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप जवाब देंगे. आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा. थैंक यू. May I ask? यस सर. Okay.
There are two sentences. You tell me the difference between two sentences. I am an engineer. I am an engineer. The second sentence is I have an engineer. Yes, sir. Explain. You tell me the difference between two sentences. I am an engineer and I have an engineer. I have engineer यानी मेरे पास इंजीनियर है. I am an engineer. मैं एक इंजीनियर हूँ. Good. Okay, now tell me the difference between two sentences. The first sentence is I have been beaten. I have been beaten. And tell me the second structure. I have been beaten. ये सेम सेम नहीं लग रहा था. I have been beaten. I have been beaten. Could you please explain again? Please question, sir, again. Okay, okay. I'm going to ask again. I have been teaching, sorry, I have been taught English. The first sentence is I have been taught English. The second sentence is I have taught English. The second sentence, I have taught English. The first sentence, I have been teaching English. The second sentence was, I have been taught English, not teaching. I have been taught English. And if you find difficulty in understanding my question, then I'm going to write here so that you may understand well. I have taught English. The first sentence is I have been taught English. The second sentence is I have taught English. You tell me the difference between two sentences. सर इसमें लगता है जैसे I have taught English मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I have been taught English. 1 minute. आपने कहा कि इंग्लिश सीख रहा हूँ. अगर कोई काम अगर अभी चल रहा है तो उसके लास्ट में आता है आईएनजी फॉर्म. कोई काम अभी चल रहा है तो लास्ट में आता है आईएनजी फॉर्म. क्या आपको यहाँ कहीं आईएनजी फॉर्म दिखा? नहीं सर. रहा हूँ कैसे बोल सकते हैं आप? I have taught English. मैं इंग्लिश सीखूंगा. सीखूंगा मीन्स शैल या विल फ्यूचर. Shall we like us? I have been taught English. Have been. इसमें होगा सर ना कि I have been taught English. मैं इंग्लिश सीखूंगा. पढ़ा चुका. No, how can you say सीखूंगा? सीखूंगा means I shall have या been- will. So I'm I not have talking. मैं इंग्लिश सीख चुका. This is not a riddle. आप पहली बोलेंगे तो कोई ना कोई से लड़ जाएगा फिर कहें हम सही बता दिए. अच्छा ठीक है. कोई और है जो कोशिश करेगा बताएगा कि I have been taught English and I have taught English. What the difference? जिसको आता है बता सकता है. सर आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ. आई Okay. हैव बीन टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है. Absolutely fantastic answer. Absolutely wonderful. Could you please explain that what helped you in understanding the concept? Although your friends were not telling right answer, so you explain how did you get it?
Sir, I have taught English is a present perfect tense. It's a helping verb is has, have, and verb third form of verb. And I have been taught English. It's a Can I say, sir? Okay, okay. who taught English? No idea, sir. Not showing there, mentioned there. इसका मीनिंग यही होगा ना सर कि मुझे इंग्लिश पढ़ा दिया गया। Yes. Yes, sir. He is saying right. मुझे इंग्लिश पढ़ा दिया गया है, but who is taught? Not सब्जेक्ट mentioned in this पता नहीं sentence. है कौन पढ़ाया, हमको पढ़ा दिया गया। Good, good. I have taught English means मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। I have been taught English, मुझे इंग्लिश पढ़ा दिया गया है। दोनों में एक बात सिमिलर है और एक बात डिफरेंट है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में काम हो गया है, और डिफरेंट बात ये है कि एक में काम करने वाला मौजूद है, पता चला है कौन पकाया है, और दूसरा में काम करने वाला लापता है। नेक्स्ट, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। I am insulted and I was insulted. Excuse me, try. I am insulted and I was insulted. Tell me the difference between two sentences. I am insulted, मेरा इंसल्ट किया जाता है, मेरी बेइज्जती की जाती है। Yes, and I was insulted. I was insulted, मेरी बेइज्जती की गई थी। You are absolutely right. मेरी बेइज्जती की गई थी. Both sentences are correct. Nice answer. Thanks. Okay. Okay. Next question. नीचे जो भाई हैं वो भी चांस लीजिए। अभी जो भाई एक दो आंसर दिए हैं वो साइलेंट हो जाए ताकि नीचे वालों को मौका मिले। ओके, is there anybody who will tell me the difference between two sentences? The difference between two sentences, the first sentence is I have one son and he is careless. The second sentence is I have a son and he is careless. सर आई हैव वन सन, मेरे पास एक बेटा है। And he is careless. ही इज केयरलेस, मतलब इसका मतलब हुआ वो ध्यान नहीं देता। केयरलेस का क्या हुआ सर इंग्लिश हिंदी? लापरवाह, लापरवाह। लापरवाह, तो वो लापरवाह। हिंदी यही होगा ना सर, वह लापरवाह। Yes. सर इसमें And डिफरेंस बताना है। yeah, and the next sentence was I have a student and he is careless. You have to tell the difference between a and one. एंड इसके बाद A and one. The difference between a and one. सर इज वन पर्सन, just like I have one son. Sorry, I have a son. और
मेरे पास एक स्टूडेंट है, वह केयरलेस है, वह समझदार है। Okay, and next sentence. वह समझदार है। सर केयरलेस में तो लापरवाह होता है, समझदार कैसे? Yes, लापरवाह. So first try to listen my question. What is my question? ओके सर। I have one teacher. I have one teacher. The second sentence is I have been one. Okay. I'm going to change my example. I'm going to do another example. Well, I have a son. The first example is I have a son, and the second example is I have one son. Tell me the difference between two examples. आई हैव ए सन, मेरे पास बेटा है। Okay. आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है। और पहला में दो था। तो पहला में एक ही, बस मेरे पास बेटा है, इसमें मेरे पास एक बेटा है, ये डिफरेंस है। तो बात एक ही हो गई ना। पहला में कितना बेटा आपके पास? सर आई हैव सन, अब तो उसमें लिमिट नहीं है ना सर कि मेरे पास कितना है, 2 है, 4 है, 5 है। आई हैव सन, मेरे पास बेटा है, मेरे पास बेटा है। क्यों नहीं लिमिट है? आपने कहा तो एक, अभी आपने कहा ना आई हैव अ सन, मींस तो एक होता है, लिमिट तो है। सेकंड में आप बता रहे हैं, बोल रहे ना सर कि आई हैव अ सन, नहीं मेरे नहीं पास एक बेटा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, पहला कह रहा हूँ आई हैव अ सन, और दूसरा मैं कह रहा हूँ आई हैव वन सन। मैं लिख रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। I have a son and he is careless. Second sentence is I have one son and he is careless. दोनों सेंटेंस में सब कुछ सेम है। एक में आया है अ, एक में आया है वन, और हिंदी में दोनों होता है, दोनों का मतलब होता है एक। नाउ टेल मी द डिफरेंसेस। सर आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है। एंड ही इज केयरलेस, यह वह लापरवाह है। और आई हैव वन सन, मेरा एक ही बेटा है। मेरे पास एक ही बेटा है और वह लापरवाह है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ सर कि मतलब मेरे पास एक बेटा है और मेरे पास एक ही बेटा। तो पहले वाला में दो है। नहीं सर, एक ही है, बट सर वही हो जाए। सॉरी, आप ही समझाए सर, इसका नहीं समझ में आया। आप सर लिखावट है तो क्या? हेलो सर हाँ जी, बोलिए। जी। आपने शायद लास्ट टाइम बताया था मुझे इसके बारे में कि जैसे कई कई सारे हों तो उसमें से हम एक को कह सकते हैं। जैसे कई एक चेयर है तो हम कह सकते हैं इतने से, जैसे वन चेयर, आ चेयर। और लेकिन अगर एक ही है सिर्फ, जैसे आई हैव वन सन एंड ही इज केयरलेस, यानी मेरे पास एक ही बेटा है और वो भी केयरलेस है, लापरवाह है। और आई हैव अ सन, यानी कि और भी है लेकिन उसमें से एक केयरलेस है। ये तभी से एक मैं एम का मतलब। तभी से मैं सोच रहा था कोई फरिश्ता आता और इस सवाल का सही जवाब देता। चलिए, देर से है दुरुस्त है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बोल दूं ताकि
अगर कोई समझ नहीं पाए तो सब लोग समझ जाए। देखिए, ए मिस, इसमें कोई डाउट नहीं कि अ मिस भी एक होता है और वन मिस भी एक होता है। अच्छा, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं पहले ये बता दूं कि कई बार मैं कहता हूँ तो कुछ लोग सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं। जो आप ए कहते हैं ना, वो ए गलत साउंड है, उसको अ कहना चाहिए। ए कब बोलना चाहिए? जब आप अल्फाबेट पढ़ रहे होते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो वहां ए बोलना चाहिए। और अगर आप अल्फाबेट में नहीं, किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका साउंड बदल के हो जाता है अ। तो अ मिस होता है एक और वन मिस भी होता है एक। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है, अगर मैं कहूं कि आई हैव अ सन एंड ही इज अ ड्रंकर्ड, तो मेरा ये मतलब है कि मेरा एक बेटा है, या मेरे पास एक बेटा है और वह शराबी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही बेटा है तो कई, उनमें से मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ कि वह एक शराबी है। लेकिन अगर मैं कह दूं आई हैव वन सन एंड ही इज ए ड्रंकर्ड, सुनने वाला को ये समझना चाहिए इकलौता तो बेटा है मेरे पास, एक ही तो बेटा है और वो भी शराबी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव अ लैपटॉप एंड दैट्स बटन इज नॉट वर्किंग। मेरे पास आई हैव अ लैपटॉप एंड दैट्स बटन इज नॉट वर्किंग, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसका बटन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने बोला तो जो इंग्लिश समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि मेरे पास कई लैपटॉप है, उनमें से एक जो है ना, उसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका बटन काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव वन लैपटॉप एंड दैट्स बटन इज नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब कि मेरे पास एक ही तो लैपटॉप है और उसका भी बटन काम नहीं कर रहा है। वन मीन्स एक ही है, एकलौता है, और अ मीन्स है कई, उनमें से एक के बारे में बोल रहा हूँ। गुड, नेक्स्ट, who will answer the question of who will answer next question? Okay, first I'm going to ask, then you'll decide. Hindi word बाद में, sometime we say after and sometime we say later on or later. जब भी आप सुने होंगे एक बाद में बोलना होता है तो कुछ लोग कहते हैं ओके आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है बाद में बात करते हैं। और कभी कभी बाद में के लिए बोलते हैं आफ्टर। सो आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्पीक आफ्टर एंड व्हेन टू स्पीक लेटर। बाद में के लिए कब बोले आफ्टर, कब बोले लेटर? आप में से कोई बताएगा? सर लेटर मतलब थोड़ी देर में हम बात करेंगे, और आफ्टर मतलब जब मन करेगा तब बात करेंगे। ये ये जो उच्च विचार है, ये आप खुद से बनाए हैं कि कैसे पढ़े? सर कहीं से पढ़े थे नहीं, बस ट्राई किए कि कहीं सही हो, नहीं हाँ, तो तो सही इसलिए हो। अच्छा, अच्छी बात है कि आपने कोशिश किया, लेकिन अफसोस की गलत है। कोई बात नहीं सर, सीख लेंगे अभी। बिल्कुल बताएंगे, और कोई थोड़ा ट्राई करिए, आप लोग भी कुछ क्रिएशन करिए। सर एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन सर। ठीक है, ठीक है। एक वर्ड है आफ्टर, AFTER, AFTER, आफ्टर मीन्स बाद में। एंड देयर इज अनदर वर्ड लेटर, LATER, लेटर। कई बार लोग कहते हैं लेटर है, कई बार लोग कहते हैं लेटर ऑन। दोनों सही है, लेटर भी कहा जाता है, लेटर ऑन भी कहा जाता है, और उसका भी मतलब होता है बाद में। तो हम कैसे समझे कि कब बोले आफ्टर, कब बोले लेटर? क्या दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? अगर फर्क नहीं है तब तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर फर्क है तो बताइए कब कौन बोलेंगे। फर्क है सर, जैसे आई कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करता हूँ, मतलब थोड़ी देर में करूंगा या फिर मतलब जैसे 1 घंटे में करूंगा या 10 मिनट में करूंगा, इसका पता नहीं है। और आफ्टर का हो गया सर आई एम। और कोई कोशिश करेगा? सर मैं कोशिश करता हूँ, गलत भी हो सकता है। कोई बात नहीं सर, बोलिए। आफ्टर मतलब सर जैसे कि मैं कोई काम करो, कोई अगर मेरे को पूछेगा क्या, तो मैं बताऊंगा आफ्टर मतलब ये काम के बाद में। और लेटर का मतलब बाद में, मतलब कोई
वो नहीं कि 1 घंटा बाद भी हो सकता है। ठीक है, और कोई? और कोई? ठीक है, अब कोई नहीं बता रहे तो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने करीब करीब सही आंसर दिया, लेकिन पता नहीं वो बाई चांस सही बता रहे थे कि ऐसे सही बता रहे थे। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमें कहना हो बाद में, और हम ये नहीं बता रहे कितना देर बाद, टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप कह देते हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, मैं आधा घंटा बाद आऊंगा, 1 घंटा बाद, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 5 साल, आप कोई टाइम मेंशन कर देते हैं, एक श्योर टाइम बता देते हैं। तो अगर आप बता देते हैं टाइम कि ठीक है मैं तुमको 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा, सर मैं 1 हफ्ते बाद फीस जमा करूंगा, टाइम मेंशन हो गया, आप बोलेंगे आफ्टर। लेकिन आपके पास टाइम मेंशन करने के लिए कुछ नहीं है, आप कहते ठीक है मैं बाद में आपको पैसा पे कर दूंगा। कितना देर बाद, कितना घंटा बाद, कितना साल बाद, कितना महीना बाद, ये तो नहीं बताना है, बस बाद में बोल देना है। आप आफ्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा लेटर या लेटर ऑन। ओके आई कॉल यू लेटर, या ओके आई कॉल यू लेटर ऑन। ठीक है भाई, बाद में बात करते हैं। कितना देर बाद, ये नहीं मेंशन करना है। अगर टाइम मेंशन करना है तो लेटर नहीं बोलेंगे, आफ्टर बोलेंगे। हाँ, और टाइम मेंशन नहीं करना है तो आफ्टर नहीं बोलेंगे, तब लेटर बोलना पड़ेगा। बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर। आप जी लोग सर, आगे सर। यही कह रहे थे, आप लोग भी, कुछ लोग ऐसा बोले मानो कि वो यही कहना चाह रहे थे। यस सर, आई कॉल यू लेटर का सर मैं एक्सप्लेन किया था, इसके बाद सर आफ्टर वाला मेरे को समझ नहीं आया, तो उसके लिए शांत हो गया। सब सारा इसमें सारा खेल टाइम का है। टाइम मेंशन कर दिए कि कब, तो आफ्टर। टाइम मेंशन नहीं किए तो लेटर। ठीक है, अभी मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। एक वर्ड है बिफोर, BEFORE, बिफोर, और इसका मतलब होता है पहले, सबको मालूम होगा बिफोर मीन्स पहले। एक वर्ड है एगो, AGO, एगो, और इसका भी मतलब होता है पहले। तो अब हम कैसे समझे कि कब बोले बिफोर, कब बोलेंगे एगो? अभी कुछ इसमें कुछ महापुरुष होंगे जो पिछला वाला टॉपिक के बेस पर बोलेंगे टाइम है तो टाइम नहीं है, लेकिन आपका ये कोशिश बेकार जाएगा, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जी, एगो का होता है बहुत लंबे, जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी काफी लंबे पहले। अच्छा, ठीक है। और बिफोर का मतलब होता है कि थोड़ा ही पहले। ये उच्च विचार आप अपने मन से बनाए हैं कि कहीं किताबों में पढ़े हैं? जी, अपने मन से हमने समझ के बता रहे हैं कि एगो यानी कि काफी लंबे लंबे टाइम, काफी लंबे टाइम पहले को एगो कहते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले इसको यही बिफोर सवाल कहेंगे। यही सवाल जब मैं अपने क्लासरूम में करता हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने किताबों में पढ़ा है, देखा है, लेकिन आपने आपने सच बोला कि मैं अपने मन से बनाई हूँ। क्योंकि अगर आप कहते हैं मैंने किताबों से पढ़ा है ना, तो मैं कहता कि आप झूठ बोल रही हैं। क्योंकि ऐसा ऐसी बात नहीं है ही नहीं। आपने सच बोला कि मैंने खुद से क्रिएशन किया है। अच्छा लगा, लेकिन आपका आंसर गलत है। कुछ भाई और देखता हूँ कौन आंसर दे रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, लेकिन हिंदी में सर बता सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? सर हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं, आप संस्कृत में करिए। संस्कृत तो नहीं आती सर। जैसे सर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे सर एक्टिव होने के बाद 1 मिनट्स एगो या 10 मिनट्स एगो लिखता है ना सर। जी हाँ, लिखता तो है। सर इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट पहले वो एक्टिव था, अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब बिफोर। और एगो, इसके बाद दूसरा क्या था सर? आफ्टर था ना?
आफ्टर नहीं सर, बिफोर मीन्स पहले, एगो मीन्स पहले। बिफोर के बारे में बताइए आप। बिफोर, 1 सेकंड सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। बिफोर मैंने पहले, जैसे आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, मैंने पहले ही खा लिया था। आई एम ईटिंग बिफोर, मैंने पहले ही काम हो चुका है, पास्ट में ही काम हो चुका है। ठीक है। और आफ्टर मतलब, और सॉरी ये, और एगो मतलब? ईगो मैंने बस आने वाले के लिए हम लोग ईगो को यूज करते हैं। ये उच्च मैं भी विचार, ये उच्च सलाम वालेकुम विचार, सर। रुकिए भाई। ये उच्च वालेकुम सलाम। ये उच्च विचार कहाँ से लाए थे सर? अपने पास से कि कहीं किताब में से? अपने ही मन से सर, अभी ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस हो रहा है या नहीं देखते हैं। चलिए ठीक है, ट्राई किए लेकिन। सर हाँ मैं जी, एक्सप्लेन करूं। सर मैं बोलिए बोलूंगा सर, सर। बोलिए बोलिए। सर ये सर दोनों जैसे का मतलब तो पहले मैं होता यार है। काम काम तो सर 5 ईगो बजे में, से पहले खत्म कर एक दूंगा, मिनट उसमें बिफोर एक सर, एक मिनट रुकिएगा। दो लोग साथ में बोलेंगे ना तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। हाँ, तो अभी जो साहब बोल रहे थे यस फिर से सर। बोलिए, फिर से बोलिए सर। हाँ। सर ईगो और बिफोर का मतलब तो पहले होता है। तो हम्म, ईगो का सर हम लोग तब यूज करते हैं जब पास्ट में कोई काम मतलब पहले हो गया हो। हम्म, जैसे मैं 2 दिन पहले उसे मिला था, या 2 दिन में पहले उससे बात किया था, ऐसे सर इस सेंटेंस में ईगो यूज करते हैं। ठीक है। चाहे ऐसे हमारे व्हाट्सएप में चाहे कुछ लॉगिन करते हैं तो लास्ट दिन दिखाता है, चाहे ऐसे कुछ आता है सर, 1 आवर ईगो, यानी कि 1 घंटा से पहले की बात होगी पास्ट में। अच्छा अच्छा। और बिफोर का मतलब होता है सर, मैं, ये भी पास्ट का ही बात है, लेकिन उससे हम्म, पहले की बात हो जाती है इसमें। जैसे कि मैं मीटिंग में, सॉरी क्या इसका एग्जाम्पल हो रहा हूँ, मैं उससे मिला था मीटिंग से पहले, अच्छा। या मैं 8 बजे से पहले खाना खा लिया, मतलब दोनों का पहले ही है और दोनों पास्ट में ही है। तो हम, तो मतलब दोनों इंटरचेंजेबल है ना, जहाँ जिसके जगह जो लगा लीजिए कि कोई उसमें डिफरेंट है कि नहीं, ये यहाँ पे यही लगेगा, वहाँ पे यही लगेगा, ये बात क्लियर नहीं हुई। सर। तो ये बात तो थोड़ा, अच्छा अच्छा, एक मिनट। और हाँ साहब, एक जो साहब अभी हमको जो बता रहे थे, आप ये बता दीजिए कि ये बात आप खुद से बोले हैं कि कोई गूगल से देख कर बोले हैं? नहीं सर गूगल से नहीं देखे है सर। एगो मतलब और आदमी अपने मन बोल से रहा था बोले ना ना? सर, उसमें से थोड़ा सा, वो अपने और से आदमी बोले है जो ना? बोल रहा था ना उसको थोड़ा कैच करके। अच्छा अच्छा, मतलब कुल कई लोगों का आइडियाज लेकर एक नया क्रिएशन कर दिया है ना? जी जी। ठीक है ठीक है, लेकिन आपका आइडियाज गलत है। हाँ जी। अ- सर आप राइट बताइए। एक आदमी, एक कुछ ये कह रही हैं कुछ, अहमद। जी जी। आप जी सर मेरे बोलिए। एगो का ऐसा तो नहीं है कि जो जो हो चुका है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम हो चुका है। हो सकता है, लेकिन अभी हम बता रहे, बोला आप अपना बताइए। हाँ, तो हमको ये लग रहा है कि स्पेसिफिक टाइम में जो काम हो चुका है उसको एगो कहेंगे। और बिफोर में यानी कि जो काम हमें करना है, यानी अभी बिफोर में हम ये करेंगे, हम तुम्हें थोड़ी देर पहले ये काम करेंगे। ठीक ठीक। और ये नासिर बलिया, बलिया के लोग कहते हैं कि बलिया बागी, क्या भाई? आप तो शेर अपने आप को कहते हैं और एकदम सबसे पीछे बैठे हैं, ये कौन सी बात हुई? थोड़ा आप भी बताइए नासिर भाई। लगता है शेर सो रहा है, सोने दीजिए इसको। हाँ जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि एगो और बिफोर मीन्स होता है पहले। एगो का मतलब होता है अभी से, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, अभी से जितना पीछे जाना चले जाओ। आज से 2500 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए। अभी से तुरंत, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस वक्त से जोड़ के बता रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले मेरे गांव में बारिश हुई थी। अभी से 10 मिनट पहले लाइट चली गई। When you talk about from present to past, you will use echo। चाहे कितना पीछे जाओ, 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल जाइए, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप प्रेजेंट से जाइए, अभी से जाइए, जहां बैठे हो वहां से जाइए, दैट्स echo। और बिफोर का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम टू पास्ट। जब पास्ट से पास्ट के बारे में बात करेंगे, यानी दोनों टाइम पास्ट का ही है, तो वहां पर आप बोलेंगे बिफोर। ईगो वाला तो आपको समझ में आ गया होगा,
लेकिन बिफोर वाला में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो कहने का मतलब ये है कि 3 दिन पहले किसी आदमी का मौत हुई थी और अभी डॉक्टर आया नहीं था, उसके पहले मरीज मर गया। यानी डॉक्टर आया 8:05 पर और मरीज 8 बजे डेथ कर गया। तो मरीज का मरा अभी मरा है, अभी से 5 मिनट पहले नहीं। वो परसों 3 दिन पहले 8 बजे उसका डेथ हुआ और डॉक्टर आया 8:05 पर। तो ये दोनों टाइम पास्ट का था और यहाँ पे लगेगा बिफोर। अभी भी आप ठीक से नहीं समझे होंगे, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जब आप 10वीं में थे, चाहे कोई बच्चा 10वीं का एग्जाम दिया, आज सुबह में एग्जाम दिया और उसका टाइमिंग था 7 से 10। तो जो टीचर थे बहुत थोड़ा अकड़ू थे, उन्होंने 15 मिनट पहले ही सभी बच्चों का कॉपी ले लिया। तो एक बच्चा जाकर अपने पापा से बोलेगा, पापा मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि सर ने 15 मिनट पहले ही कॉपी ले लिया। अब शाम को बच्चा शाम को अपने पापा से कह रहा है ना, पापा शाम को घर आए। तो बच्चा बोला कि पापा सर 15 मिनट पहले ही कॉपी ले लिए। तो क्या मतलब, वो जो बच्चा बोल रहा है सेंटेंस तब से 15 मिनट पहले? बिल्कुल नहीं। कब से 15 मिनट पहले? 10 बजे कॉपी लिया जाना था और 9:45 सर ने कॉपी ले लिया। तो ये दोनों टाइम पास्ट का है। बच्चा तो शाम को बोल रहा है ना, बोल रहा है। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती कि बच्चे को होम ट्यूशन दिया जा रहा है और सर आकर उसे एक टेस्ट ले रहे हैं और सभी लोग बैठे हैं, तो सर ने बोला कि ठीक है मैं 1 घंटे का टाइम दूंगा और 7 से 8 का टाइम है। अभी 7:45 हुआ तभी सर ने तुरंत पेपर लिया और बच्चा तुरंत अपने पापा से शिकायत कर दी कि पापा सर ने तो 15 मिनट पहले ही पेपर ले लिया। तो इसका मतलब अभी से 15 मिनट पहले। अब यहाँ तो ईगो लगेगा, लेकिन जो एग्जाम वाली बात कर रहा था वो तो सुबह में हुआ। तो अगर वो 10 तारीख था तो 10 तारीख के सुबह 10 बजे पेपर लिया जाना था कानून के हिसाब से, और टीचर ने 9:45 पेपर ले लिया। तो ये दोनों टाइम पास्ट का है। प्रेजेंट करें, पास्ट टू पास्ट हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बिफोर। अब लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आई होप कि ये एग्जांपल आपको जरूर समझ में आएगा। एक आदमी की शादी है, चलिए इसी में से किसी को करा दे रहा हूँ। ये अब्बास जी जो है ना, इन्हीं की शादी थी और दुल्हन के घर ये लोग बोले थे कि हम लोग 9 बजे आएंगे बारात लेकर। और अब्बास जी जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ एक शहर आता है, उस शहर में अक्सर ट्रैफिक लग जाती है और 1 घंटा डिले होता है। यकीनन ट्रैफिक लगती ही है और 1 घंटा डिले होता ही है। लेकिन जिस दिन इनकी बारात जा रही थी, पता नहीं कोई स्ट्राइक था या क्या था, बिल्कुल कोई ट्रैफिक लगी ही नहीं। और ये लोग तो सोच के चले थे कि 1 घंटा ट्रैफिक में लगेगी। कोई ट्रैफिक ना होने की वजह से ये लोग 8 बजे ही दुल्हन के घर पहुंच गए। दुल्हन के घर वाले सोचे थे चलो 9 बजे बारात आएगी, तब तक सारा इंतजाम कर देंगे हम, बारातियों के लिए चेयर्स लगा देंगे और मिठाइयाँ रख देंगे, सब कुछ कर लेंगे। और ये साहब तो 1 घंटा पहले पहुंच गए। अब वहां पे कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से सारे बाराती भड़क गए और गुस्सा होने लगे। अच्छा, तो घर वाले कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, बारात 1 घंटा पहले ही आ गई। ओके, तो अगर हम आज उस शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और बोलें कि अब्बास भाई के शादी में तो मसला खड़ा हो गया, कोई आदमी खाना नहीं खा पाया, क्यों? तो घर वाले कह रहे हैं कि बारात, मेरा क्या कसूर है? बारात 1 घंटा पहले ही आ गई थी। क्या अभी से 1 घंटा पहले बारात आ गई थी? अब्बास भाई की शादी अभी जो क्लास ले रहे हैं अभी हो रही है? नहीं, ये कोई बीती बात है। 5 मार्च को उनकी शादी थी, 5 मार्च को रात 9 बजे आनी थी बारात और 5 मार्च को रात 8 बजे बारात आ गई थी। दोनों टाइम 5 मार्च है, यानी दोनों टाइम पास्ट की है। अब यहाँ पर हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि द वेडिंग प्रोसेशन
केम बिफोर 5 मिनट। जो बाराती थे वो जो बारात थी वो 5 मिनट पहले आ गई, बिफोर 5 मिनट्स। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई शादी आज ही है और दुल्हन का भाई गया है कहीं किसी काम से मार्केट, और उसको पता चला कि बारात आ गई, जल्दी आओ। तो वो पूछेगा, अरे कब बारात आई है? तो कोई कहेगा, आओ कोई बात नहीं, बारात अभी 5 मिनट पहले आई है। अभी 5 मिनट पहले आई है, अभी से 5 मिनट पहले आई है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टू पास्ट। अब यहाँ पर बिफोर नहीं लगेगा, एगो लगेगा। बताइए कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? समझ आ गई सर। ठीक है, समझ में आ गई, अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आई वो दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा लगता है मुझे, कि थोड़ा टफ लगता है, इसीलिए कई बार बच्चों को समझ। प्लीज एक बार और रिमाइंड कर दें। अच्छा ठीक है, एक बार और आवाज बताता आप हूँ। अच्छा सर, आप, सर एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, कुछ सर कह रहे हैं आप? ये इसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता सर, आई डू दिस बिफोर आई लेफ्ट, ऐसा नहीं हो सकता है एक कि बार मैं कोई बोलिए। काम आई, करूंगा मैं जाने से पहले, आई डू दिस वर्क बिफोर आई लेफ्ट। आपके जाने से आपके जाने से पहले मैं कोई काम करूंगा? हाँ मतलब आपके जाने से पहले मैं ये काम कर लूंगा, है ना? तो ये तो फ्यूचर में हो गई ना, तो ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। लेकिन पास्ट की अगर जनरली हम इसमें भी पास्ट, आपका यूज हो सकता है, हाँ बिफोर यूज हो हाँ, सकता है ना सर। फ्यूचर में, फ्यूचर सेंस में कर रहे हैं आप, कर सकते हैं। लेकिन अब पास्ट के सेंस में तब करेंगे जब आप पास्ट टू पास्ट कोई बात बोले, जब दोनों टाइम पास्ट का हो तब आप बोलेंगे। जैसे अभी मान लीजिए आपने आज क्लास ले लिया और आपका क्लास खत्म हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया, तो आप परेशान हैं। कोई पूछेगा, अरे यार क्यों नहीं आया तुमको क्वेश्चन नंबर 1? तो आप कहेंगे कि सर ने टाइम बताया है कि रात 11:30 से 12:30 पढ़ाएंगे, और उसके हिसाब से मैं 11:30 बजे क्लास ज्वाइन किया, और सर ने 5 मिनट पहले ही क्लास शुरू कर दिया। वो 5 मिनट ये पहले वो ही तो बात क्लास। समझ में आया सर, लेकिन फ्यूचर में वो तो समझ में आया, लेकिन फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है, यही फ्यूचर है। हाँ फ्यूचर कर सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। फ्यूचर में कर हाँ सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, हम बात पास्ट की कर रहे थे। तो अब जो चूंकि 5 मिनट पहले कर दिया था, तो ये पास्ट की बात हो गई ना, दोनों टाइम पास्ट की हो गई। और तो यहाँ बोलेंगे बिफोर। लेकिन अगर आप क्लास लेने बैठे हैं और आप दो दोस्त हैं, और मैं 15 मिनट पहले क्लास शुरू कर दिया, आपको तो बाई चांस मालूम पड़ गया कि हाँ मैंने शुरू कर दिया, लेकिन आपको दोस्त को नहीं मालूम है, तो वो क्या बोले, आप उसको फोन करके बोलेंगे, अरे यार क्लास ज्वाइन करो, सर ने 15 मिनट पहले क्लास शुरू कर दिया है। सर ने 15 मिनट पहले क्लास शुरू कर दिया है, यानी अभी से 15 मिनट पहले। तो अब वहां पर बोलेंगे एको। बस समझ में आ गई? यस सर, क्लियर। तो जिन्होंने कहा क्लियर, उनसे एक सवाल है, सगीर अंसारी से। आज से यस सर। आज से लाखों साल पहले ये दुनिया आग का एक गोला थी, इसमें पहले की क्या बोलेंगे? आज से एगो। लाख, अच्छा, क्यों बिफोर क्यों नहीं बोलेंगे? सर एगो। बिफोर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पास्ट से प्रेजेंट की, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट की बात हो रहा है। जिस जिस सेंटेंस में पास्ट से प्रेजेंट की बात होगा, चाहे वो कई सौ साल बाद की बात हो, मुश्किल नहीं है, उसमें हम एगो का यूज करेंगे। जो पास्ट से पास्ट की बात होगा उसमें हम आफ्टर का बात करेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम नहीं होगा। चाहे लॉन्ग भी टाइम हो तो मुश्किल नहीं है सर, ये पास्ट की पास्ट में। जैसे आप एग्जांपल दिए कि डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले
मरीज मर चुका था, 2 दिन पहले डॉक्टर को मतलब ऐसे एग्जांपल दिए थे आप। तो ये सब जो भी बात हुआ इसमें सब पास्ट की बात हुआ। तो इस ऐसे अगर कोई सेंटेंस आएगा उसमें हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर कहाँ से आ गया? सर सॉरी बिफोर। सर। चलिए कोई नहीं, ठीक। अगर आपको बात, सभी को बात समझ में आ गई, तो फिर मैं एक अगला क्वेश्चन करता हूँ और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके सर। ये कई बार बच्चे गलत इस्तेमाल करते हैं और याद करना को बोलते हैं रिमेम्बर, ठीक है, और याद करने को लर्न भी कहते हैं। तो हम कैसे समझे कि कब बोले रिमेम्बर, कब बोले लर्न? पर मेरे ख्याल में लर्न जो है वो सीखना होता है और रिमेम्बर होता है वो याद करना होता है कुछ चीज। नहीं, ये लर्न मतलब सीखना, ये लर्न का एक मतलब सीखना होता है, लेकिन उसका मतलब याद करना भी होता है। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। सीखना तो होता ही है, साथ में याद करना भी होता है। रिमेम्बर मतलब कोई भूली हुई चीज याद कर रहे हैं करना होता है, और लर्न होता है जो अभी कुछ नई चीज सीख रहे हैं। बिल्कुल यही इसका आंसर है, बिल्कुल यस राइट आंसर। वो सर, कि चीज अभी याद, रिमेम्बर मतलब पास्ट में हम लोग याद, पास्ट की कोई बात भूल गए उसको हम याद कर रहे हैं। हम्म, और लर्न मतलब जो अभी हम नया सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। सर एक बार पिछली आप भी बार बता याद दीजिए करेंगे सबके लिए। तो रिमेम्बर बोलेंगे सर। हाँ, क्या बोल रहे सर? सर पिछली बातों को अगर याद करेंगे तो उसको रिमेम्बर बोलेंगे सर। हम्म, और कुछ याद करना है तो उसको सर लर्न बोलेंगे, आने वाला जो। ठीक। चलिए एक सवाल, एक वर्ड है एक वर्ड है STILL, स्टिल, STILL स्टिल। एक वर्ड है YET, येट, येट मीन्स, अब दोनों का मतलब एक ही होता है, अभी भी या अभी तक। तो कैसे हम समझें कब बोले येट और कब बोले STILL स्टिल? सर स्टिल जो है सर मतलब बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक चल रहा है सर, वहाँ स्टिल का यूज करेंगे। अच्छा, और येट? और ये मतलब सर जो अभी अभी जस्ट अभी चल भी रहा शुरू, है। अभी भी चल रहा है। ये उच्च विचार कहाँ से लाए हैं सर? उससे सर खुद से। आप सभी लोग को इंजीनियर होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्रिएशन बहुत अच्छा करते हैं। हमारी फील्ड इंजीनियरिंग है सर, क्या करें। मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट कोई और क्या कोशिश करे, कोई और बताइए, फिर मैं बता दे रहा हूँ। कोई और कोशिश करेगा कि मैं बताऊं? बताइए सर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं हसन जी? बोले स्टील होता है सर कुछ दिखाने के लिए कि जैसे अभी काम चल रहा है उसमें स्टील का उपयोग करता है। और येट? येट का सर नहीं पता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब कोई काम अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो बोलते हैं स्टिल। लेकिन जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ तो बोलते हैं येट। जैसे एक लड़का था, गेम खेल रहा है, उसकी मम्मा ने बोला चलो मोबाइल छोड़ो, अब उसकी मम्मा 15 मिनट बाद आ रही है, तो देख रही है खेल ही रहा है, तो बोले, उसकी माँ बोलेगी तुम अभी भी गेम, तुम अभी तक गेम खेल रहे हो, या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो? आप बातों से सुनकर लगा कि बहुत पहले से खेल रहा है, अभी भी इसमें इसमें लगा हुआ है, तो बोलेंगे स्टिल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक माँ ने अपने बच्चे से बोला कि ठीक है, ये तुम ब्रेकफास्ट ये फिनिश कर खा लो। आधे घंटे बाद माँ आई तो देखी वैसे ही पड़ा हुआ है, खाया भी नहीं है। फिर माँ ने कहा चलो होमवर्क कर लो। आधे घंटे हो गए, आकर देखिए तो होमवर्क किया ही नहीं है। तो माँ कहेगी तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो अभी तक, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैंने अभी भी
या मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, वो अभी भी बिस्किट नहीं खाया है, तो कोई काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो बोलेंगे येट। एग्जाम्पल, वो अभी तक होमवर्क नहीं किया है, ही हैजंट डन हिज होमवर्क येट। वो अभी भी शादी नहीं किया है, ही हैजंट मैरिड येट। वो अभी भी सच नहीं कहा है, ही हैजंट स्पोकन द ट्रूथ येट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो अभी भी गेम खेल रहा है, या वो अभी तक गेम खेल रहा है, ही इज स्टिल प्लेइंग गेम। वो अभी भी सो रही है, शी इज स्टिल स्लीपिंग। तो दोनों का मतलब होता है अभी भी, अभी तक, लेकिन काम शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है तो स्टिल, और काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तक है। यानी सर इस तरीके से हो गया कि नेगेटिव पॉजिटिव टाइप पे, नहीं सर? अब जैसा आप समझ ले बेहतर, आप जैसा समझ जाएंगे बेहतर है। और अगर आप कोई बोल मैंने अभी तक सिगरेट नहीं पिया है, इसमें लगेगा येट, आई हैवंट स्मोक सिगरेट येट। ये बात है। कुछ तो ज्ञान मिलता है लेकिन वेल, तो उम्मीद करता सर हूँ तो हाँ जी बोलिए। ऐसा कुछ पीडीएफ है क्या सर जो आपने आज क्लास कराया है, जैसे सर एगो, बिफोर, ये आफ्टर? ये सब है, वो लाइन बाय लाइन चलता जाता है, लेकिन चूंकि आज प्रैक्टिस से कराया था तो एट रैंडम जो मेरे दिमाग में आता गया ओके ओके वो मैं आपको बताता गया। पहले से ओके सोच के नहीं आता कि ये बताऊंगा, ऐसे दिमाग में आता गया, और चूंकि प्रैक्टिस का दिन था तो वही बताता गया। जी जी शुक्रिया। बहुत वैसे ओके बहुत सर, अच्छी सलाम। चीजें बताई और सर बहुत कंफ्यूजन दूर किया, हम लोग तो फंसे रहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर 15 मिनट का भी टाइम है तो आप लोग प्रैक्टिस, व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में जाकर कुछ बात किया करें सर। कितना भी आप इंग्लिश, मैं आपको बता दूं ना, आप एक राइटर तो बन जाएंगे और एक लिसनर, अच्छा लिसनर बन सकते हैं, लेकिन स्पीकर नहीं बन सकते जब तक कि आप बोले नहीं। तो 15 मिनट का भी टाइम हो तो आप लोग ग्रुप में जाइए और जाके कुछ एक टॉपिक पर बहस करें, इसी आज जो बताया इसी पर बोलिए। सभी को मालूम है कि यह तो स्टिल कहाँ बोला जाएगा, लेकिन सभी अनाड़ी बन जाइए और एक आदमी सवाल करें और सभी लोग उसको बोलने की कोशिश करिए। कुछ बोलेंगे तो अच्छा सही रहेगा। वेल, गुड नाइट एवरीवन।